Good morning, students. Today I am going to discuss with you your topic of class 12, that is tertiary economic activities and quaternary economic activities. It's in your 7th chapter. Before going to the discussion, at first you should know what is economic activity. The economic activity क्या है? The activities we can say that which generate income, that is economic activities. And economic activities are classified into primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary economic activities. I have already discussed with you in the previous class about the primary and secondary economic activity, and today I will discuss with you the tertiary economic activities. Primary economic activities, that means it includes agriculture, mining, fishing, forestry, that means which are directly related with the environment. And secondary economic activity, it includes manufacturing and industries. And tertiary economic activities, that mainly includes the transport and communication, service sector, and trade and commerce, everything. These are included in tertiary economic activities. So tertiary activities are concerned with the intangible outputs. And these include a large diversity of services ranging from that of a technician or plumber to that of a lawyer, teacher, doctor, computer operator. And tertiary economic activities are not involved in material production. मटेरियल प्रोडक्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है. मटेरियल प्रोडक्शन किस में इंक्लूडेड है? दैट सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. और जो तुमको याद रखना है, जो वी कैन नॉट मेजर the output of these activities, and they can be measured only indirectly in terms of the wages and salaries. And tertiary economic activities, they mainly relies much more directly on the workforce skills, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. मतलब टर्शियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा किसका ऊपर डिपेंडेंस है ना? वर्क फॉर स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज का ऊपर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? द टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू ट्रेड एंड कॉमर्स, transport and communication and services. At first I will discuss with you the trade and commerce. What is the meaning of trade? Simply means the buying and selling of goods. That is known as the trade. और जो जहाँ पर ये ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब द टाउन्स एंड द सिटीज, द प्लेसेस where the trade is going on, that is known as the trading centers. There are three types of trading centers. One is, it may be rural or it may be urban. One is rural trading centers, urban trading centers, and the third one is periodic markets. So what do you mean by the rural trading centers? Rural trading centers simply means when the trade activity is going on the rural areas, and it mainly serves the services, and it supply the goods and the commodities living in the rural area to the people living in the rural area or in the nearby areas. और जो है रूरल जो सेंटर्स है, मार्केटिंग सेंटर्स है, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मंडीज. मंडीज मतलब क्या है ना? होलसेल मार्केट. एंड द रिटेल मार्केट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स. उसके बाद जो है अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, मतलब व्हेन ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन इन द अर्बन एरिया, दे सर्व द सर्विसेज एंड द कमोडिटीज टू द अर्बन पीपल. और इसमें जो एक डिफरेंस है रूरल ट्रेडिंग सेंटर के साथ अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स में, इसमें क्या है ना? पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन द रूरल एरियाज, बट पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब टीचर, डॉक्टर, कंसल्टेंट्स, these they are not available in the generally are not available in the rural marketing areas, but these personal and professional services are available and well developed in the urban marketing centers, but these are not well developed in the rural marketing areas. और जो थर्ड वन है पीरियोडिक मार्केट. पीरियोडिक मार्केट मतलब कुछ मार्केट एरिया है जहाँ पीरियड मतलब these are not regular market. जनरली क्या होता है, वीक में एक बार या दो बार ऐसा होता है. these are known as the periodic markets. मतलब in certain rural areas where there is no regular market, and rural markets are organized at different intervals of time.
एंड दीज आर यूजुअली वीकली और बाई वीकली। इसमें क्या होता है, जो मार्केट जो शॉपकीपर्स है वो क्या करते हैं, उन दे आर ऑलवेज बिजी ऑल द टाइम ड्यूरिंग द वीक। मतलब वो एक सपोज मंडे में वो एक रूरल एरिया में अपना सप्लाई कर रहा है, लेकिन दूसरा ट्यूसडे में दूसरा रूरल एरिया में मार्केटिंग में वो एंगेज है। मतलब अलग अलग मतलब अलग अलग एरिया में हफ्ते में एक मार्केटिंग सेंटर्स हो रहा है, एक मार्केट हो रहा है, लेकिन जो शॉपकीपर्स है दे आर ऑलवेज बिजी इन ऑल डेज ऑफ द वीक। तो बेंगली में जैसे एक पोएम है, तुम लोग जानते हो, हाट বসেছে শুক্রবারে বক্সিগঞ্জের পদ্মা পারে জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে গ্রামের মানুষ বেচে কেনে। आई मीन टू से दैट हाट, द वर्ड हर्ट मतलब एक पीरियोडिक मार्केट है जो वीकली होता है या हफ्ते में एक बार या 2 बार होता है। सो दिस ऑल आर दी अबाउट द मार्केटिंग सेंटर्स। तो इट मे बी रूरल एंड अर्बन। द होलसेल मार्केट एंड द रिटेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट क्या है, सिंपली अगर इसको हम डिस्कस करें कि होलसेल मार्केट जो है इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। सो एट ए वेरी चीपर कॉस्ट, मतलब सब सामान मिलेगा चीपर कॉस्ट में मिलेगा, एक साथ बहुत सारे मिलेगा, और जो प्रोड्यूसर है वो खुद उसको बेचने में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड द सेलिंग गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी सो एट द चीपर कॉस्ट। और रिटेल में क्या होता है ना, रिटेल जो मार्केटिंग है यहाँ पर क्या होता है, यू सेल योर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। मतलब जैसे कि तुम्हारा अपना एरिया में कुछ शॉपकीपर है, दे सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। पहले वो होलसेलर से अपना प्रोडक्ट को ला के फिर कंज्यूमर को बेचता है। सो दे आर द रिटेलर्स। और तुम्हारा रिटेल मार्केटिंग में देखा गया कि जैसे कि देखो स्ट्रीट पेडलिंग, जैसे हम गोलगप्पे खाते हैं, फुचका हमारा बहुत फेवरेट है गोलगप्पे, ये तुम्हारा क्या है स्ट्रीट पेडलिंग में आएगा। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल सेलिंग। मतलब इनका कोई परमानेंट स्टोर नहीं है, नॉन स्टोर रिटेल सेलिंग। इसका अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो बोलोगे स्ट्रीट पेडलिंग, मेल ऑर्डर में जो खाना आता है या मेल ऑर्डर में कुछ प्रोडक्शन आ गया जिसका कोई परमानेंट शॉप नहीं है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल सेलिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का, यू हैव टू डिस्कस अबाउट द यू सेल योर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। मतलब जैसे कि तुम्हारा अपना एरिया में कुछ शॉपकीपर है, दे सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। पहले वो होलसेलर से अपना प्रोडक्ट को ला के फिर कंज्यूमर को बेचता है। सो दे आर द रिटेलर्स। और तुम्हारा रिटेल मार्केटिंग में देखा गया कि जैसे कि देखो स्ट्रीट पेडलिंग, जैसे हम गोलगप्पे खाते हैं, फुचका हमारा बहुत फेवरेट है गोलगप्पे, ये तुम्हारा क्या है स्ट्रीट पेडलिंग में आएगा। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल सेलिंग। मतलब इनका कोई परमानेंट स्टोर नहीं है, नॉन स्टोर रिटेल सेलिंग। इसका अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो बोलोगे स्ट्रीट पेडलिंग, मेल ऑर्डर में जो खाना आता है या मेल ऑर्डर में कुछ प्रोडक्शन आ गया जिसका कोई परमानेंट शॉप नहीं है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल। मतलब लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम होगा वहाँ पर ही इंडस्ट्री का लोकेशन होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ जुड़ेगा। मतलब प्रोडक्शन के कितना खर्चा हो रहा है इसके साथ ये इंक्लूडेड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होने से प्रॉफिट घट जाएगा, तो इसलिए तुम्हारा क्या है दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलवेज डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। सो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ सिस्टम which what is transport? It is a system which carry the goods and passengers and the people from one place to the another place. और ये ट्रांसपोर्टेशन भी तुम्हारा टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्ट में क्या है ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है, एंड दिस ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन 3 फॉर्म्स। अनदर वन, फर्स्ट वन इज किलोमीटर डिस्टेंस, तुम्हारा टाइम डिस्टेंस एंड कॉस्ट डिस्टेंस। ये किलोमीटर डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर डिस्टेंस मतलब एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितना एरिया तुम एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हो वो किलोमीटर डिस्टेंस है। और जो तुम्हारा
क्या है ना, टाइम डिस्टेंस मतलब द टाइम इज टेकन टू ट्रैवल ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, एंड कॉस्ट डिस्टेंस दैट मीन्स द कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व इन ट्रैवलिंग ऑन ए रूट। एक रूट में ट्रैवल करने में कितना कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट डिस्टेंस से कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम डिस्टेंस एक्चुअल में कितना किलोमीटर तुम ट्रैवल करो, किलोमीटर डिस्टेंस से मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस इज डिस्कस्ड और यू कैन से दैट इज मेजर्ड इन 3 फॉर्म्स। किलोमीटर डिस्टेंस, इसको याद पे रखोगे, कॉस्ट डिस्टेंस एंड टाइम डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। देयर आर 2 फैक्टर्स which affects the transportation services. First one is demand and second one is route. डिमांड क्या है, मतलब बोला गया है जहाँ पर पॉपुलेशन नंबर ज़्यादा है, मैंने मोर द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, if there is high standard of living, more number of population, so demand for the transportation is always high. और रूट क्या है, the transport is always done on specific routes, and these routes it depends on the location of the cities, towns, villages, industrial centers, raw materials, pattern of the trade between them, nature of the landscape between them, and the type of the climate and the funds available for overcoming the obstacles along the length of the route. मतलब रूट का ऊपर डिपेंड करके भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड द रूट। इसके बाद जो है communication service, these are also another type of tertiary economic activity. First you should know what is communication. Simply अगर मैं पूछूँ communication है क्या, देखो तुमको मैं हम पढ़ा रही हूँ, तुमको मैं पढ़ा रही हूँ, क्या है तुम्हारे साथ मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी देखो लॉकडाउन, दिस इज द टाइम ऑफ पैंडेमिक, सो रेगुलर जो ऑफलाइन क्लासेस इज नॉट अवेलेबल, तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इसमें क्या है, ऑनलाइन मतलब थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल फोन, थ्रू कंप्यूटर वी आर कनेक्टेड, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर कनेक्टेड। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं अपना बात तुमको बोल रही, कम्युनिकेट कर रही तुम्हारे साथ, सो दीज आर दी कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ द वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो पहले क्या होता था ना, इन द अर्लियर डेज कम्युनिकेशन वेयर लार्जली डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम लोग खत लिखते थे, जो ऑल द मैसेजेस दीज वेयर ट्रांसपोर्टेड बाय दी बर्ड्स। जैसे कबूतर का इस्तेमाल होता था पहले कुछ मैसेजेस को भेजने के लिए, एनिमल्स एंड बाय दी हैंड, इट मे बी बाय दी हैंड, रोड, बोट, रेल एंड एयर। मतलब ट्रांसपोर्टेशन was referred as the communication, but communication and transportation is different. And today with the advancement of the technology, communication system has become independent. अभी क्या हो रहा है, देखो ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है, तुम स्कूल में आकर नहीं पहुंच रहे हो, पैदल चल के भी, साइकिल में, रिक्शो में, जो भी, लेकिन क्लास इज गोइंग ऑन थ्रू द कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब इंटरनेट, मोबाइल फोन, TV, television, newspaper, all these are the examples of the communication system. तो first जो है telecommunication, it is the example of कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, टेलीफोन के द्वारा पर्सन टू पर्सन हम हमारा जो मैसेज है, कुछ बात को हम भेज सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग द न्यूज, पिक्चर्स टू वास्ट ऑडियंसेस। एक साथ बहुत सारे ऑडियंस में कुछ जो न्यूज़ है उसको हम पहुंचा सकते हैं, सो थ्रू दी मीडियम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, सो दीज आर नोन एज द मास मीडिया। उसके बाद न्यूज़पेपर्स comprise a strong print medium as they are able to cover events happenings anywhere in the world. उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेज द इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। अभी देखो कहाँ पर आमफान आने वाला है, कहाँ पर क्या वेदर सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग जो है हमको पता चलता है कि सैटेलाइट इमेजरी से, सैटेलाइट स्पेस से जो भेजा जाता है वहाँ से हमको कम्युनिकेट कर रहा है हमारे साथ, तो उससे हमको ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। हमको आगे पहले से ही पता चल जाता है कहाँ पर डिप्रेशन आने वाला है, कहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, ये सब। उसके बाद है इंटरनेट हैज़ रियली रिवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे जो ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको, उसमें रिवोल्यूशन लाया कौन है ना, इंटरनेट। तो तुम क्या बोलोगे ना, इंटरनेट हैज़ really revolutionized the global communication system. So trade and commerce, transport and communication, these are different types of tertiary economic activity. Next जो है सर्विस। जो देखो मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, मतलब क्या है, हमारा सर्विस तुमको मैं दे रही हूँ। डॉक्टर जो अपना काम करते हैं वो अपना सर्विस देते हैं, तो सर्विस जनरली है मेंटल लेबर एंड फिजिकल लेबर, बोथ टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इन्वॉल्व।
तुम्हारा फिजिकल लेबर में तुम्हारा क्या आएगा, जैसे कि देखो द सर्विस ऑफ द गार्डनर, जो बगीचा में जो माली काम करता है, गार्डनर, द लॉन्ड्रियर्स एंड द बार्बर, दे डू प्राइमरीली द फिजिकल लेबर, बट द टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिजिशियंस मतलब म्यूजिशियंस एंड अदर परफॉर्म दी मेंटल लेबर एंड ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द सर्विसेज सेक्टर। उसके बाद देखो दैट्स मेकिंग एंड मेंटेनिंग द हाईवेज एंड ब्रिजेस, maintaining firefighting departments and supplying or supervising the education, customer care are some important examples of regulated services, and these services are often supervised and performed by the government or companies. ये जो service है, these are the regulated services. These are performed by the and supervised by the government sometimes and also by the some companies. But there are some services which are totally unorganized. जैसे कि देखो these are known as the non-formal और informal sector. जैसे कि देखो unskilled workers, they migrate from the rural to the urban areas in search of the job, and they are engaged in the houses in the domestic areas as the housekeepers, cooks, gardeners, laundryers. So this segment comprises of unorganized services. Example देखो मुंबई का डब्बे वाला they are very famous in मुंबई. उनका काम क्या है? टिफिन देना. Their services is provided to about 1,75,000 customers all over the city every day. मतलब एक मुंबई सिटी में 1,75,000 कस्टमर को वो खाना सप्लाई करते हैं. They are very famous. So, but they are included in the non-formal sector. मतलब they are not regulated by the government or any companies. और एक बात है जिसको याद में रखना है, जो दिस although services are provided in all societies, but yet more people are engaged in the services sector in developed countries than in the developing countries. जैसे बोला गया था यूएसए में बोला गया है 75% of the people are engaged in the tertiary sector, service sector, and in the developing countries this percentage is only near about 10%. मतलब जितना इकोनॉमी ग्रो करेगा सर्विस सेक्टर में एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, मतलब सर्विस सेक्टर में इंगेजमेंट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा टर्शियर इकोनॉमिक सेक्टर में इंगेजमेंट ज़्यादा है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का ये एक सिंबल है। और जो एक बात है जिसको डिस्कस करना है इंडिविजुअली, दैट इज़ द सम सिलेक्टेड एग्जाम्पल, जैसे कि टूरिज़्म क्या है, व्हाट डू मीन बाय टूरिज़्म। देखो हम पूरा अगर ये सारा महीना में, सारा साल में ये सब काम ही करे तो हम थक जाते हैं, तो जो हमारे लिए क्या चाहिए, मेंटल रिक्रिएशन चाहिए, इसके लिए हम घूमने जाते हैं। तो ये टूरिज़्म क्या है ना, जर्नी अंडरटेकेड फॉर रिक्रिएशन इज नोन एज द टूरिज़्म। और टूरिज़्म के लिए स्पेशली डिस्कस क्यों कर रहा है, क्योंकि टूरिज़्म इज ग्रोइंग रैपिडली एंड इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब, दैट इज 250 मिलियन एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल जो रजिस्टर्ड जॉब है इसमें टूरिज़्म हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सिंगल टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे लोगों को अपना जॉब मिल रहा है, लोकल पीपल को, जैसे कि जो पीपल जैसे सेवरल पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एलाइड सर्विस सच एज होटल एकोमोडेशन, कुक्स, transport etc. and whole tourism grows, infrastructure becomes stronger. In some areas tourism is seasonal, while in others inflow of the tourists continues all the year round. जैसे कि देखो शांति निकेतन का एग्जाम्पल देखो, ये टूरिस्ट प्लेस भी है, तुम लोग जानते हो, जो फेमस टैगोर प्लेस, द प्लेस ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर जनरली ऑल ओवर द ईयर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इसका सीजनल भी एक इम्पॉर्टेंस है, जैसे कि दोल का टाइम में, स्प्रिंग में, उसके बाद पौष मेला जो होता है दिसंबर का सीजन में, तो तुम्हारा उस समय टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। मतलब कुछ टूरिस्ट सीजनल भी है कुछ जगह पे। और जैसे गोवा सी बीच है, गोवा तुम जानते हो समुद्र के किनारे, माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, सो ऑल ओवर द ईयर यहाँ पर टूरिस्ट आएगा। हम जो गर्मी का, इंडिया इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक एरिया, तो समर वेकेशन में हम ज़्यादा पहाड़ों में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा हो। और यू ऑल नो दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट, तो पहाड़ों में ठंडा वेदर है इसलिए। तो टूरिज्म इज हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल टर्शियरी इकोनॉमिक
एक्टिविटी। बाद जो है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, टूरिज्म में क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड डिमांड ये इफेक्ट करता है। और टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है जैसे कि क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट, जैसे कि बहुत सारे पैलेस है, कुछ कुछ लोग को जो एक्सप्लोर करना पसंद है वो पैलेस, कैसल, चार्ट्स ये देखना पसंद करते हैं तो वो हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे घूमने के लिए। से कल्चर, इकोनॉमी, सो दीज ऑल आर द टूरिस्ट अट्रैक्शंस। इसके बाद तुमको जो डिस्कस करना है दैट इज क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड क्वीनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या है? क्वाटरनरी एक्टिविटीज जो है it includes information based research and development. Quaternary activities, and this is a new category of activities which has come into use only recently. जैसे इसमें तुम्हारा आएगा which is mainly concerned with the knowledge such as education, information, research and development. And the term quaternary basically refers to the more intellectual occupations whose task is to think, research and develop ideas. As such, this sector is especially concerned with research and development. क्वाटरनरी एक्टिविटीज में इसमें कौन कौन आएगा? जैसे कि म्यूचुअल फंड मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियंस, personnel working in the office buildings, elementary schools, university classrooms, hospitals, doctors' offices, theatre, accounting and brokerage firms all belong to this category of services. इसके बाद है क्वीनरी एक्टिविटीज। क्वीनरी एक्टिविटीज में आएगा पीपल एंगेज इन द हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग परफॉर्म क्वीनरी एक्टिविटीज। क्वीनरी एक्टिविटीज इट इंक्लूड्स, देखो कौन कौन क्वीनरी एक्टिविटीज में आएगा, जैसे कि स्पेशलिस्ट्स, consultants, decision makers, policy formulators, they are included in the queenary activities, and the professionals who are engaged in the queenary activities, they are known as the gold collar workers. और इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल दिस सेक्टर इज स्पेशली कंसर्न विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वाटरनरी एक्टिविटीज में इसमें कौन कौन आएगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियंस, personnel working in the office buildings, elementary schools, university classrooms, hospitals, doctors' offices, theatre, accounting and brokerage firms all belong to this category of services. इसके बाद है क्वीनरी एक्टिविटीज। क्वीनरी एक्टिविटीज में आएगा पीपल एंगेज इन द हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग परफॉर्म क्वीनरी एक्टिविटीज। क्वीनरी एक्टिविटीज इट इंक्लूड्स, देखो कौन कौन क्वीनरी एक्टिविटीज में आएगा, जैसे कि स्पेशलिस्ट्स, consultants, decision makers, policy formulators, they are included in the queenary activities, and the professionals who are engaged in the queenary activities, they are known as the gold collar workers. और इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है ना, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री में तुम्हारा आईटी सेक्टर का जो अंतर है, मतलब डेवलप्ड कंट्री में आईटी सेक्टर का ज़्यादा यूज है, डेवलपिंग कंट्री में उससे कम है, दोनों में जो गैप है जिस नोन एज द डिजिटल डिवाइड। इसके बारे में तुमको जानना है व्हाट डू मीन बाय डिजिटल डिवाइड? द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग द आईटीसी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नोन एज द डिजिटल डिवाइड। और तुम्हारा जो जैसे नेचर ऑफ वर्क, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तुम्हारा उनको बोला जाता है रेड कॉलर, क्वीनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गोल्ड कॉलर, highly skilled specialists in high technology industries, white collar, and workers in manufacturing industries, blue collar. So in this chapter तुमको क्या क्या पढ़ना है? In this chapter और एक टॉपिक है that is बोल देती हो PDS। PDS क्या है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। What is public distribution system? Now it is a government sponsored chain of shops entrusted with the work of distributing basic foods and non-food commodities to the needy section of the society at a very cheaper prices. जैसे हम बोलते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम पैसा में चीज़ मिलेगा। सो इनमें क्या होता है ना, जो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स एंड कॉमोडिटीज दीज आर सप्लाइड टू द नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट द चीपर कॉस्ट। दीज आर नोन एज द PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या पॉइंट तुमको कवर करना है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट डू यू मीन बाय टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
what is quaternary activities, what is quinary activities, and types of tertiary economic activities in like trade and then you have to discuss about trade and commerce. एंड ट्रेड में तुम्हारा रूरल मार्केटिंग सेंटर, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, पीरियोडिक मार्केट्स, अबाउट होलसेल एंड रिटेल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस देयर आर इट इज मेजर्ड इन 3 फॉर्म्स, जैसे किलोमीटर डिस्टेंस, टाइप डिस्टेंस, कॉस्ट डिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, डिमांड एंड रूट, देन कम्युनिकेशन सर्विस, it includes the telecommunication, mass media, newspaper, satellite and internet, then services, इसमें क्या है ना, लो ऑर्डर सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज। उसके बाद नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, देन अबाउट टूरिज्म, व्हाट इज PDS, द फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, क्वाटरनरी एक्टिविटीज, क्विनरी एक्टिविटीज। तो ये सब, एंड डिजिटल डिवाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल डिवाइड। तो ये चैप्टर में तुमको ये सब पॉइंट को कवर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।